Chalo, let's start with chapter 1. So chapter 1 is about advent of foreign powers in India. So as we all know, there were many foreign powers which had come to India. It was not just British. British का empire सबसे बड़ा था, that is true, but uh, there were many other foreign European powers specifically which had come to India, and in this chapter we are going to understand how did they come and how did they grow their empire. So let's start with it. But before that, we need to understand some background. The background में क्या है? See, initially in the first few centuries, the Roman Empire was the very strong empire. Then there was a decline in Roman Empire around 7th century. Their decline started. Roman Empire कौन सा empire है? Byzantine Empire, okay. And similarly in the 7th century only there was a rise in the Arab powers, and finally in 1453 the Constantinople, which was the capital of Roman Empire, it was won by the Ottoman Turks, so it completely ended the Roman Empire. So this was the background. वो यूरोप के एंड मिडल ईस्ट एरिया में ये सब इश्यूज चल रहे थे. उसके बाद in 15th century there was a renaissance of exploration. So exploration मतलब चलो अभी यूरोप कम पढ़ने लग गया था, that is why they started to explore कि और अदर एरियाज में जाके हम लोग हमारा colonization बढ़ा सकते हैं क्या, to take their resources etc. So they initially thought about going to Africa, and then they started just exploration. So 1494, in 1494 there was a treaty of Tordesillas. Abhi, this was an important treaty with respect to exploration. इस treaty के अनुसार the Atlantic Ocean was a division, and उसके west side पे जो भी areas थे, the Spanish मतलब स्पेन वाले लोग they will explore in the west, and the Portuguese people will explore in the east of Atlantic. So according to it, Diaz was the first explorer who was a Portuguese. He reached till the Cape of Good Hope in Africa in 1488. Okay, so but he did not go. He could not go ahead. Then let's talk about Vasco da Gama. Vasco da Gama in 1498 he took 3 ships, and he started to explore from Portugal. Then he reached Cape of Good Hope according to that route, and then he moved ahead and he reached till Calicut in India. So he was helped in navigation by Abdul Majid, who was a Gujarati, and he guided in the exploration. Then when he reached, Vasco da Gama reached near Calicut, he was confronted by ruler Zamorin. Okay, but initially there was no conflict. So Vasco da Gama had took pepper जो होता है ना, जो खाने में डालते हैं वो, he took that and he tried to create friendly relationships, and he went back. Then Pedro Alvarez was a person, Portuguese, who came, and he had set up a factory in Calicut. Okay, again Vasco, he had gone back to Portuguese, he again came back, and he started a trading factory in Kennor. Okay, so this is what Vasco da Gama did. His contribution means basically he discovered India with respect to the European people. They came to know about it now. Means earlier there were people like Alexander who had reached till India, but then वो बहुत पुराना हो गया था. अभी बहुत टाइम के बाद रेनेसेंस में वास्को दा गामा ने ढूंढा, एंड देन फिर वो सब कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ, बिकॉज यहाँ पे एक नया लैंड है, वहाँ पे रिसोर्सेस है. सो ऑल द यूरोपियन पावर्स वांटेड टू कम टू इंडिया. फिर पोर्तुगीज़ में ही फ्रांसिस्को डे अल्मेडा, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर और वाइसरॉय भी बोलते हैं, गवर्नर भी बोलते हैं. लेट्स कंसिडर गवर्नर और वाइसरॉय दोनों फॉर 3 years. ओके,
सो उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? ही डिड बैटल ऑफ ड्यू वर्सेस ज़ैमोरिन इन 1507. सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन फ्रांसिस्को डे अल्मीडा का था. ही गेव द ब्लू वाटर पॉलिसी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कार्टेजे सिस्टम. मीन्स its purpose was to make the Portuguese master of the Indian Ocean. ओके, मतलब और कोई कॉलोनियल पावर को इंडियन ओशन पे राज करने के लिए नहीं देने का. इंडियन ओशन पे राज पोर्तुगीज़ का होना चाहिए, उस हिसाब से ही डिज़ाइन द सिस्टम. सो फर्स्ट गवर्नर जो था फ्रांसिस्को डे अल्मीडा, ही वॉज appointed by King Manuel I of Portugal. He also set up the first fort which is in Cochin. The first fort of Portuguese was in Cochin and factory was in Calicut. Okay. Then next in the line was Alfonso de Albuquerque. He was the second governor or captain general or viceroy. He was the real founder of Portuguese power. He started the permit system for ships. He acquired Goa from Sultan of Bijapur, and he was the first European after Alexander to actually capture land in India. So he set up his township there. So the members of Portuguese they became artisans and craftsmen and became landlords. They tried to develop roads and irrigation. They married Indian women. The important contribution was they abolished sati in that area. They started coir rigging factories, not factories but the business. Then they tried to develop some crops like tobacco, cashew, pineapple, papaya, chili, and a better form of coconut. Means coconut was already present but a better form of coconut. He captured Bhatkal from Krishnadevaraya. So this was Albuquerque. Next in line was Nino de Cunha. He was a governor in 1529. So he made Goa capital. He subjugated Diu and Daman. Then there was a fight between Mughal Emperor Humayun versus Bahadur Shah of Gujarat. So Bahadur Shah asked for help of Portuguese, and in return he said he will be giving away basin. Okay, वो जो Salcedo basin है ना, out of it he said he will give basin to Portuguese for the help. Then Nino de Cunha also tried to set up a factory in Hooghly. Abhi other details about Portuguese are they had cannons. Okay, so they were powerful in that terms. Estado Portuguese da India. अभी this was the name of Portuguese state. State मतलब जो गवर्नमेंट उनका था ना, उसका नाम ये था. अभी एडमिन हेड जो था ना, एडमिन हेड को वाइसरॉय बोलते थे. सो ही वॉज हेड फॉर 3 years. अभी इसका एग्जाम्पल क्या है एडमिन हेड का? एक वेदर दे फजेंडा. सो एडमिन हेड, एज एडमिन हेड ही वुड हैंडल कार्गो एंड रेवेन्यू. देन देर वर फोर्ट्स. जो फोर्ट्स थे, फोर्ट्स का हेड वर कैप्टन्स एंड उनके असिस्टेंट वर कॉल्ड फैक्टर्स. ओके, अभी एनिमी कौन थे पोर्तुगीज़ के? अरब्स थे एंड मूर्स. मूर्स कहाँ से थे? अफ्रीका के थे. देयर पर्पस वॉज टू ऑल्सो प्रमोट क्रिश्चियनिटी. सो अभी अकबर के कोर्ट में देयर वर सम priest which went, like example Aquaviva, Monserrate, then Father Xavier and Father Pinero. They went there with the purpose of sharing and promoting Christianity. Then Jahangir, who was also known as Prince Salim, he gave imperial farman of Sirka. Okay, imperial farman matlab royal decree. So he gave that फरमान. therefore हुगली और सतगांव का एरिया में पोर्तुगीज स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग देयर
trading products. They trade and they tried to monopolize salt in that area. They also built churches in that area. Later Shah Jahan ordered Bengal ka Qasim Khan to seize Hooghly. Also Maratha जो थे, they captured Salsette and Basin. Then Shah Jahan also ordered Mukarrab Khan in Surat to take away areas from Portuguese. अभी Portuguese were also called as sea pirates. They discovered Latin America. Therefore पोर्तुगीज़ पावर कभी इंडिया में इतनी डेवलप नहीं हो पाई बिकॉज दे डिस्कवर्ड लैटिन अमेरिका. सो वो लोग सब लैटिन अमेरिका चले गए एंड देन दे ट्राई टू डेवलप लैटिन अमेरिका. दे ट्राई टू मतलब उनका सारा पॉपुलेशन वहाँ पे चला गया. और इंग्लिश जो थे, इंग्लिश केम टू इंडिया एंड दे ग्रू हियर. ओके, सो अभी उनका एक कोट है दैट दे केम with one hand in one hand sword and other hand crucifix. This was a quote given by Alfonso de Souza, who was a governor, Portuguese governor. अभी उनका जो आर्मी फॉर्मेशन था, it was with the name Drilling Group Infantry. अभी Drilling Group Infantry was a Spanish model. Okay, they followed that model. In 1608 अभी क्या हुआ, पोर्तुगीज़ का ये सब डेवलप हो रहा था. बट इन 1608 Captain William Hawkins came in ship Hector. He reached Surat. He came from James I, King James I of England. He reached in Jahangir's court. Hawking got a mansab of 400. He got permission for trading also. And उसके बाद Hawking went back and then British came with ship Dragon under Captain Best and plus ship Osnider. Okay, ये दो ships आए. They fought with the Portuguese and English won there. Also in that time Dutch also won on Portuguese fort on Malabar. अभी फर्स्ट आए थे पोर्तुगीज, सेकंड कौन आए? सेकंड आए थे डच पीपल. ओके, सो डच केम इन इंडिया एंड दे सेट अप फर्स्ट फैक्ट्री इन मसुलीपट्टनम in Andhra Pradesh in 1605. They also captured Nagapattinam from Portuguese, also Pulicat in Andhra Pradesh. Then they tried to develop indigo business in Yamuna Valley. Then also opium business in Bihar. उनका कैप्टन थे Cornelis de Houtenham. So he reached Sumatra. He went ahead of India and he reached Sumatra and Amboyan आइलैंड्स. मतलब अम्बोयन मतलब कौन सा? इंडोनेशिया. सो वो लोग ने उनका सेटअप ज़्यादा साउथ ईस्ट एशिया में बनाया. सो ब्रिटिश ने क्या किया? दे हैड दिस बैटल ऑफ हुगली इन 1759 विच इंग्लिश वन. सो ब्रिटिश ने वहाँ से विड्रॉ किया थोड़े साउथ ईस्ट एशिया में से, और वहाँ पे डच लोगों को ही they allowed for trading, not for colonization. English colonial power बन गई and they allowed Dutch to only trade there. Okay, no fortification or colonization. अब देखो, Alexander was the first European, like proper European to capture land in India. और Alexander के बाद बीच में कोई भी नहीं था. फिर मुगल्स केम, वो फिर दिल्ली सल्तनत वगैरह हुआ. बट अलेक्जेंडर के बाद जो यूरोपियन विच कैप्चर्ड लैंड इन इंडिया वाज द पोर्तुगीज. ओके, तो पहले पोर्तुगीज आए, सेकंड केम डच, अभी थर्ड इंग्लिश आए थे. अभी इंग्लिश के बारे में व्हेन वी टॉक, फर्स्ट विच कम्स टू आवर माइंड इज द चार्टर विच वाज गिवन बाय क्वीन एलिजाबेथ I on 31st December 1600 टू मर्चेंट एडवेंचर कंपनी. इस चार्टर ने क्या दिया था? इट गेव एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके, जो मर्चेंट एडवेंचर कंपनी था, इट गेव मोनोपोली फॉर 15 years. देन इन 1607 देयर वाज अ न्यू चार्टर गिवन बाय क्वीन. इट गेव एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट फॉर इनडेफिनेट पीरियड इन द ईस्ट इंडीज. ओके, सो जो कैप्टन बेस्ट आया था, he had defeated Portuguese, which we had talked about,
and therefore Jahangir gave permission to start a factory at Surat in 1611. So first factory was in Surat, okay, in 1611 of English. The factory was handled by Thomas Aldworth. Then in 1615, Thomas Roe, who was the ambassador of James I, he came to Jahangir's court and he got 2 फरमान्स. Okay, उसमें कौन से थे? It allowed exemption of inland taxes and it allowed factory to be set up at Agra. अभी Bombay was gifted to King Charles by King of Portugal as dowry. Okay, at an annual payment of 10 pounds. तो वेस्टर्न हेडक्वार्टर जो है इट शिफ्टेड फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे आफ्टर दैट. ओके, तो बॉम्बे बन गया वेस्टर्न हेडक्वार्टर. अभी देन देयर वाज पीस बिटवीन इंग्लिश एंड डच. तो इंग्लिश लोग ने क्या किया, वो लोग ने अपना इंडिया पे दे ट्राई टू सेट अप देयर एम्पायर एंड डच लोग को बोला, डच लोग ने अभी ईस्ट इंडीज़ आइलैंड्स पर ही अपने का ट्रेडिंग का काम करने का आफ्टर बैटल ऑफ हुगली. Then Captain Middleton, English का, he got permission of trade from Sultan of Surat. So he started trading in that area सूरत में. Then गोल्डन फरमान के बारे में बात करते हैं. गोल्डन फरमान was किसके लिए? It was for गोलकोंडा फोर्ट्स. गोलकोंडा एरिया में कितना at 500 pagodas per year English got the golden फरमान. Abhi there was a member of Masulipattnam council. His name was Francis Day. So he got permission from ruler of Chandragiri to build a fort. This fort became Fort St. George. Okay, St. George Fort. अभी Fort St. George जो वहाँ पे बन गया, Fort St. George was built in 1670. Okay, मद्रास एरिया का हेडक्वार्टर था, तो फिर वो मद्रास प्रेसिडेंट का भी हेडक्वार्टर बन गया एंड इट बिकेम साउथ का हेडक्वार्टर. ओके, तो साउथ का हेडक्वार्टर था फोर्ट सेंट जॉर्ज. अभी लेट्स टॉक अबाउट ईस्ट. तो ईस्ट में फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ इंग्लिश वाज सेटअप इन हरिहरपुर इन बालासोर ओडिशा नियर महानदी डेल्टा. तो बंगाल का सूबेदार जो था शाह सूजा, ही अलाउड ट्रेडिंग at rupees 3000 per year to English, but there was a requirement that the English should also pay the toll and taxes. Okay, अभी हुगली में जो फैक्ट्री बन गया, इंग्लिश वांटेड फोर्टिफिकेशन देयर, मतलब वहाँ पे फोर्ट बनाने का था. तो अभी ये फैक्ट्री किसके अंडर था? इंग्लिश के विलियम हिच के अंडर. तो अगर इंग्लिश ने क्या किया, दे ट्राई टू सेट अप अ फोर्ट देयर. सो Mughal log, they got angry and they sacked the factory. Okay, so English retaliated by capturing fort of Thana. Thana area कौन सा था? It was area of Garden Reach. Okay, so अभी ये इशू हो रहा था, तब कंपनी ने अपना एजेंट भेजा जॉब चार्नुक. So जॉब चार्नुक did a negotiation and got जमींदारी of Sutanuti and Kalighat and Gobindpur. And then there was a fortification in that area at Fort William in Bengal. ये सब बंगाल का एरिया है ना. तो in Bengal there was fortification of Fort William in 1756 which became the eastern headquarter. Fort William कोलकाता एरिया में बनाया गया था. So that was the eastern headquarter. तो कितना हो गया? वेस्टर्न हेडक्वार्टर हो गया बॉम्बे. ओके, सदर्न हेडक्वार्टर बन गया फोर्ट सेंट जॉर्ज. ईस्टर्न हेडक्वार्टर बन गया फोर्ट विलियम बंगाल में, कोलकाता में. ओके, अभी फोर्ट विलियम का फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज सर चार्ल्स आयर, EYRE. ही गॉट फरमान टू कंटिन्यू ट्रेड. ओके, सो वहाँ पे ट्रेडिंग बहुत अच्छा चल रहा था बंगाल एरिया में. दैट्स वाई बंगाल फ्लरिश्ड वेरी हाईली इन द ब्रिटिश पीरियड. बंगाल को बहुत जल्दी फरमान्स वगैरह मिल गए थे एंड इंग्लिश ट्राई टू सेट अप देयर ऑल ट्रेडिंग फैक्ट्रीज एंड ट्रेडिंग प्रोसीजर्स फ्रॉम देयर ओनली. सो नेक्स्ट इज फारूक शियार, who was a Mughal emperor. He gave farman in
1715. किसको फरमान दिया? ही गेव फरमान अंडर द मिशन लेड बाय जॉन सरमन. अभी ये फरमान को क्या बोलते हैं? इस फारूक शेयर के फरमान को बोलते हैं मैग्ना कार्टा. ओके, क्यों इसको मैग्ना कार्टा क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट अलाउड सो मेनी ट्रेडिंग कंसेशंस दैट इट देन फ्लरिश्ड द ट्रेडिंग पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया. देयरफॉर ब्रिटिश का जो ट्रेडिंग का एम्पायर था, इट बिकेम वेरी बिग आफ्टर दिस फरमान. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैग्ना कार्टा बिकॉज उसमें क्या क्या था? इट अलाउड दस्तक्स. अभी दस्तक क्या होते हैं? पासिस. मतलब ब्रिटिश लोगों को पासिस दे दिए गए कि जाओ बिंदास, आपको कोई इधर उधर रोकेगा नहीं ट्रेडिंग के बीच में. फिर सूरत वॉज गिवन अंडर एनुअल पेमेंट ऑफ 10,000 रुपीज़ एंड देर वॉज नो ड्यूटी आफ्टर इट. अगर 10,000 रुपीज़ दे दिया इंग्लिश ने, देर वॉज नो ड्यूटी. फिर बंगाल में इट वॉज अलाउड टू रेंट मोर एंड मोर लैंड to the English for trading purposes. Also there was given high freedom in Hyderabad and Gujarat. There was also allowed that the British could mint gold coins at Bombay. Okay, so ये सारे चीज़ें was given by Farooq Shiar's फरमान which is also called as Magna Carta. अभी 1662 में औरंगजेब gave फरमान to trade more in Bengal. Earlier, अभी 1662 मतलब इट वॉज अर्लियर देन फारूक शेयर. ओके, औरंगजेब ने थोड़ा सा ही दिया था, पर फिर फारूक शेयर आया इन 1715 ही गेव अ बिगर ट्रेडिंग कंसेशन टू द ब्रिटिश. औरंगजेब के टाइम सर विलियम नॉरिस वॉज द एम्बेसडर टू औरंगजेब एंड इन 1708 टू कंपनीज मर्ज टू फॉर्म यूनाइटेड कंपनी टू ईस्ट इंडीज़. ओके, जो इंग्लिश के दो ईस्ट इंडिया कंपनीज थे ना जो ट्रेडिंग के लिए थे, दे मर्ज टू फॉर्म यूनाइटेड कंपनी टू ईस्ट इंडीज़ बाय अर्ल ऑफ गोल्डफिन. उन्होंने किया था ये मर्जर. अभी जो फोर्थ आए थे, फोर्थ वर द डेन्स, मतलब डेनमार्क वाले. सो दे केम इन 1616 ना, फोर्थ थे वो लोग to come to India. In 1616 they set up their first factory at Tranquebar, मतलब तंजौर, and सीमापुर which is in Calcutta. उनका मेन पर्पस ट्रेडिंग या फिर एम्पायर बिल्डिंग नहीं था. देयर मेन वर्क वाज मोस्टली मिशनरी एक्टिविटीज़. ओके, सो ये हो गया फोर्थ. अभी फिफ्थ कौन है? फिफ्थ यूरोपियन पावर विच केम टू इंडिया वाज द फ्रेंच. सो फ्रेंच वर द लास्ट टू कम टू इंडिया and they left India in 1954. और पोर्तुगीज़ कब, when did they leave India? They left India in 1961. मतलब पोर्तुगीज़ आए थे पहले और एंड में गए. ओके, सो फ्रेंच के बारे में बात करते हुए, फ्रेंच वो तो फ्रेंच किंग कौन था? किंग लुइस 14. ही हैड अ मिनिस्टर, हिज नेम वाज कोलबर्ट. So they started a French East India Company which was named as Compagnie des Indes, and they got a monopoly of 50 years, okay, in Indian Ocean and Pacific. So in 1667 Francois Caron was the governor, set up a factory at Surat. तो पहले सूरत में फैक्ट्री किया. Then next factory in Masulipatanam. He got a permission from Shaista Khan, who was Subedar of Bengal, to establish a town at Chandranagore. Next governor था Francis Martin, French governor, next French governor of Francis Martin. So he made Pondicherry the center of French Empire, and he also set up new factories at Mahe, Karaikal. सो ये सब एरियाज फ्रेंच के बन गए. देन वो जो डच लोग थे ना, डच विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश दे वेंट अगेंस्ट द फ्रेंच एंड डच कैप्चर पौंडीचेरी. ओके, वो लोग के बीच में वॉर हुआ, बट द डच रिटर्न इट टू द फ्रेंच. पौंडीचेरी को रिटर्न किया बाय ट्रीटी ऑफ राइसविक, RYSWICK. लेटर द फ्रेंच कंपनी वॉज रिकग्नाइज्ड एज द परपेचुअल मतलब नेवर एंडिंग कंपनी इन द ईस्ट इंडीज़, एंड दे सेट अप देयर हेडक्वार्टर इन मॉरिशियस.
not East Indies but Indies, and they set up their headquarter in Mauritius. Also there was a Spanish succession in Europe. So तब फ्रेंच एक पावर था, तो फ्रेंच जो वॉरियर्स यहाँ पे आए थे, फ्रेंच हैड टू अबैंडन देयर फैक्ट्रीज एंड फोर्ट्स एंड दे हैड टू रन बैक टू यूरोप टू फाइट विद द स्पेनिश. अभी इंडिया में जो फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में वॉर्स हुए थे, दे वर कॉल्ड कार्नेटिक वॉर्स. मतलब एंग्लो फ्रेंच के बीच में जो वॉर थे इन इंडिया, दे वर कॉल्ड कार्नेटिक वॉर्स. और यूरोप में जो हो रहा था, दैट वाज ऑस्ट्रियन सक्सेशन. ओके, सो अभी लेट्स टॉक अबाउट द कार्नेटिक वॉर्स. तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो हुआ था, इट वाज बिटवीन 1740 टू 1748. ओके, कार्नेटिक मतलब कौन सा एरिया? कोरोमंडल कोस्ट. अभी व्हाट वाज द कॉज फॉर द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर? इंग्लिश नेवी का जो कैप्टन था, कैप्टन बार्नेट, he seized the French ships in the Carnatic coast. So French retaliated and the French won on Madras under governor of Mauritius, whose name was Admiral La Bourdimas. And ये फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में टसल चल रहा था. बट देन देर वॉज द ट्रीटी ऑफ एक्स ला चापले which gave conclusion to Austrian war. Okay, जो ऑस्ट्रियन सक्सेशन चल रहा था ना वहाँ पे. So by this treaty only, French got the territories in the northern American area and English got back Madras from the French. Okay, so this first Carnatic war included Battle of Saint Thome. ये कौन सा एरिया है? मद्रास में का. Battle of Saint Thome on river Adyar. So this was first Carnatic war. अभी इसमें French was under Captain Paradise, who defeated महफूज खान of नवाब अनवरुद्दीन of Carnatic. अभी नवाब अनवरुद्दीन was with the he took help of English, but French won there. Okay, so ये issue बन गया था, which then later transformed into the second Carnatic war. Now let's talk about the second Carnatic war. Second Carnatic war was from 1749 to 1754. अभी इसमें ड्यूप्लेक्स एक he is a very important personality from the French. Dupleix was a governor and he had led in the first Carnatic war. And Dupleix का problem क्या था? He did a lot of interference in the local politics. Okay, so अभी local politics में इशू बहुत इंटरफियरेंस होने के बाद तो फ्रेंच और इंग्लिश में टसल और बढ़ने लग गया. तो इंग्लिश सपोर्टेड नासिर जंग एंड अनवरुद्दीन एंड फ्रेंच सपोर्टेड मुजफ्फर जंग एंड चंद साहिब. अभी वाई डिड दीज टू पावर सपोर्टेड दीज पीपल? बिकॉज अभी क्या हो गया था, निज़ाम उल मुल्क ऑफ हैदराबाद का डेथ हो गया था. फिर अभी हैदराबाद किसके पास जाएगा, उसके हिसाब से इंग्लिश एंड फ्रेंच सपोर्टेड दीज पीपल. सो देर वॉज बैटल ऑफ अंबर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेल्लोर. सो फ्रेंच वन ईयर. ओके, फ्रेंच जीत गए. सो मुजफ्फर जंग वॉज मेड सूबेदार ऑफ डेक्कन and Dupleix was made the governor of the territory. So Dupleix was doing private trade, a lot of private trade to earn money, and there was a lot of corruption. Therefore उस पर केस बन गया फ्रेंच में, तो फ्रांस में. So he वो फ्रांस में जाके केस लड़ा. He won and he came back as governor of चंद्रनगौर. अभी उसका आइडिया क्या था, जब हैदराबाद डेक्कन में जब जीत गया था, तो टू कीप द फ्रेंच आर्मी एट हैदराबाद ऑन एक्सपेंस ऑफ द सूबेदार. ओके, ये डुप्लेक्स का आइडिया था. सो दिस आइडिया वाज सिमिलर टू सब्सिडरी अलायंस, बट इसको सब्सिडरी अलायंस नहीं बोलते, बट दिस आइडिया जो था ना वो डुप्लेक्स का था. ओके, सो डुप्लेक्स वाज लेटर also the governor general of Pondicherry and later Nawab also. Then Robert Clive आया. Robert Clive was English agent. He made raid on Arcot. Arcot कहाँ पे? कर्नाटक में. So French with the help of Maratha Murari Rao, they fought with the English and they won. But French को क्या हो गया? They suffered a huge financial loss.
देन फ्रेंच का गवर्नर चेंज हो गया, उस नेम वॉज गॉर्डन हू। अभी गॉर्डन हू ने क्या किया, ही वॉज द नेक्स्ट गवर्नर जनरल ना, ही मेड अ ट्रीटी विथ इंग्लिश दैट देर विल बी नो इंटरफियरेंस फ्रॉम फ्रेंच साइड नाउ टू टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट्स। बट स्टिल थर्ड कार्नेटिक वॉर हुआ। थर्ड कार्नेटिक वॉर का टाइम पीरियड क्या था, 1758 to 63। पर इसका इशू, ये कार्नेटिक वॉर स्टार्ट कहाँ पे हुआ था, स्टार्टेड इन यूरोप। ओके, यूरोप में फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में बहुत सालों तक बहुत प्रॉब्लम चलते रहे, और इसका इफेक्ट हर जगह, कोलोनाइजेशन जहाँ पे इंग्लिश और फ्रेंच ने किया था, लेट्स से अमेरिका में, इंडिया में, तो वहाँ पे अगर झगड़ा होता था यूरोप में, तो झगड़े यहाँ पे भी होते थे इंडिया में। सो ये थर्ड कार्नेटिक वॉर उसकी वजह से हुआ। सो फ्रेंच अंडर काउंट डे लैली कैप्चर्ड इंग्लिश फोर्ट्स। इंग्लिश फोर्ट्स कौन से, सेंट डेविड जो मद्रास में था, एंड फोर्ट ऑफ वाइजनग्रम। सो ये फ्रेंच ने कैप्चर कर लिए। तो अभी आप ये टाइम पीरियड में दो इम्पोर्टेंट बैटल्स भी हुए थे। देखो, थर्ड कार्नेटिक वॉर में एक इम्पोर्टेंट बैटल था, बैटल ऑफ वंडीवॉश, मतलब वंदवसी इन तमिलनाडु। फ्रेंच लोग को वंदवसी बोलने नहीं आता था, इसीलिए दे कॉल्ड इट वंडीवॉश इन तमिलनाडु। अभी इंग्लिश 1 ईयर, ओके, फ्रेंच और इंग्लिश दोनों को बोलने नहीं आता था, इसलिए, एंड देन इंग्लिश 1 ईयर। दिस बैटल ऑफ वंडीवॉश वॉज इन जनवरी 1760, ओके। और जो बैटल ऑफ प्लेसी था, इट हैपेंड इन 1757, वो पहले हो गया था। देन फ्रेंच का जो जनरल था काउंट डे लैली, ही डिफेंडेड पौंडीचेरी, एंड इंग्लिश का जो जनरल था, जनरल आयर कूट, ही फॉट देयर एंड ही वन। सो अभी ये लोग में अभी इशू कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, यूरोप में, तो सॉल्व भी वहाँ पे हुआ बाय ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस इन 1763। तो वहाँ पे क्या डिसाइड हुआ, ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस में 1763 में, तो that the French factories will be restored by the English, okay, but French will not be allowed in politics now, and they will not be allowed in fortification in India. French are only going to be allowed as traders, because अभी इंग्लिश की सुप्रीमसी हो गई थी। बैटल ऑफ वंडीवॉश भी जीत लिया था, बैटल ऑफ प्लेसी भी जीत लिया था, तो इंग्लिश यहाँ पे अभी हीरो बन गए थे। अभी वो लोग ने क्या कर दिया, इंग्लिश की पॉलिसी क्या थी, दूसरे किसी पावर को फोर्टिफिकेशन नहीं करने देने का, पॉलिटिक्स में इंटरफियर नहीं करने का, आप ट्रेडिंग करो। तो जैसे कि एग्जांपल थे कि पहले बैटल ऑफ हुगली हुआ था। बैटल ऑफ हुगली इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैटल ऑफ बिद्रा, और ऑल्सो कॉल्ड एज बैटल ऑफ चिनासुरा, विच हैपेंड इन वेस्ट बंगाल इन 1759। सो इंग्लिश वन ऑन डच, ओके, डच लोग पे जीत गए थे इंग्लिश, एंड डच लोग को बोला तुम लोग ट्रेडिंग करो ईस्ट इंडीज़ में, बट अभी फोर्टिफिकेशन अलाउड नहीं है। तो उस हिसाब से डच को निपटा लिया था इंग्लिश लोग ने, और फ्रेंच को भी ऐसा कर लिया, ओके। सो अभी अपने क्या क्या देखा, 5 पावर्स आ गए ना, पोर्तुगीज, ओके, पोर्तुगीज, सेकंड डच, ओके, थर्ड इंग्लिश, फोर्थ डेन्स, डेनमार्क वाले, एंड फिफ्थ थे फ्रेंच, ओके। और फिर कार्नेटिक वॉर्स भी समझ लिया। अभी जो ट्रेडिंग था, जहाँ बेसिकली ट्रेडिंग स्टार्ट किससे हुआ था इंग्लिश का, इट वाज हाईली फोकस्ड ऑन कॉटन टाइप लाइक मूर एक्सेट्रा, और फिर सॉल्ट पीटर था, फिर वो जो मसाले स्पाइसेस वो सब धीरे धीरे वो चलते रहा। पर कॉटन हमेशा मेन इशू ट्रेडिंग यहाँ से कॉटन का इम्पोर्टेंट था, बिकॉज कॉटन वहाँ पे बेचते थे इंग्लिश लोग फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देन रॉयल ब्रिटिश नेवी वॉज वेरी लार्ज, ओके। सो ये ब्रिटिश का नेवी बहुत बड़ा था, दैट्स वाई दे वन इन स्पेनिश आर्माडा ऑल्सो, एंड दैट्स वाई दे वन इन ईयर इंग्लिश ऑल्सो इन इंडिया ऑल्सो। वो लोग हमेशा डोमिनेट करते रहे फ्रेंच लोग पे, बिकॉज वो लोग का जो नेवी था बहुत बड़ा साइज़ का था। और सबसे इम्पोर्टेंट इशू वाई डिड द इंग्लिश वन वॉज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था ना,
it was mostly it was highly profit oriented, because क्यों, it was शेयर होल्डर्स का ईस्ट इंडिया कंपनी, वो जो कंपनी था कैपिटलिज्म बेस्ड पर था, शेयर होल्डर्स थे उस पर। तो जो शेयर होल्डर्स थे वो और पैसा डालते थे कि और कोलोनाइजेशन हो बिंदास, फिर वहाँ पे वॉर करो, कोलोनाइजेशन करो। तो ब्रिटिश उसके हिसाब से बढ़ता रहा। पर तो प्रॉब्लम क्या था, ब्रिटिश का शेयर होल्डर पे था प्रॉफिट बेस, और फ्रेंच और पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी जो था इट वाज स्टेट हैंडल्ड, उधर स्टेट हैंडल करता था। तो स्टेट संभाल संभाल के पैसा डालेगा, हाँ। और ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा कैपिटलिज्म पे बेस्ड था। ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ प्रॉफिट से मतलब था, अपना ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ प्रॉफिट से मतलब था। अभी दो पार्ट बन गए वर्ल्ड के। ओल्ड वर्ल्ड में क्या क्या आता था, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, और न्यू वर्ल्ड में क्या क्या आता था, ओशिनिया और अमेरिका, विच वाज द फोर्थ पार्ट। ओके, क्योंकि ये दो नए एरियाज रेनेसेंस के बाद डिस्कवर कर दिए गए थे अमेरिका, तो वहाँ पे कोलोनाइजेशन, फिर वहाँ का रिसोर्सेज निकालो, ये न्यू वर्ल्ड बन गया था, क्योंकि तब तक अमेरिका के बारे में पता ही नहीं था। अभी जो दो इम्पोर्टेंट बैटल हुए वो ये वही टाइम में, कार्नेटिक के वॉर्स के टाइम में, वो थे वंडी वॉश का बैटल, विच बिकेम द टर्निंग पॉइंट। ओके, वो टर्निंग पॉइंट बन गया। फिर उसके बाद इंग्लिश का ही पूरा सुप्रीमेसी बन गया, मतलब हर एरिया में अभी इंग्लिश ही रह गए। और जो प्लासी का बैटल हुआ था, इट गेव पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। सो प्लासी का बैटल गेव पॉलिटिकल सुप्रीमेसी टू ब्रिटिश, एंड वंडी वॉश का गेव, इट वॉज द टर्निंग पॉइंट, फाइनल टर्निंग पॉइंट लेट्स से। वर्ल्ड का फर्स्ट बैंक, सेंट्रल बैंक इंग्लैंड में बन गया था, उसके वजह से पूरा कैपिटलिज्म का बेस वहाँ पे बन गया। और फिर वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर वहाँ से कोलोनाइजेशन वगैरह चलता रहा। और जो फोर्ट विलियम था बंगाल में, कोलकाता में, इट रिमेन द सीट ऑफ पावर टिल 1911। ओके, सो ये सारे फॉरेन पावर्स आए, दे ट्राई टू डेवलप, उनका जो वो पूरा अंदर तक नहीं आ पाए इंडिया के, मोस्टली कोस्ट के एरिया में रहते थे। बट इंग्लिश का सुप्रीमेसी बहुत था, बहुत फास्ट वो लोग ने कैप्चर किया, बहुत अच्छे अच्छे टैक्टिक्स लगाए, और दे केप्ट ऑल द फॉरेन पावर्स अवे फ्रॉम इंडिया, और इसकी वजह से इंग्लिश का पूरा सुप्रीमेसी बन गया। इसके बाद वील अंडरस्टैंड हाउ ब्रिटिश, ये ट्रेडिंग का पार्ट था। इसके बाद इन नेक्स्ट चैप्टर्स विल अंडरस्टैंड हाउ ब्रिटिश मेड एम्पायर इन इंडिया, लाइक पूरा कॉलोनाइजेशन और पूरा ब्रिटिश का एम्पायर कैसे बन गया।